तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती सरस्वती वंदना के बाद अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने का हमारा उद्देश्य चित्रकला की नवीन विधाओं से परिचित होना और ताकि नए उभरते हुए कलाकार कला की उन बारीकियों से रूबरू हो सकें, परिचित हो सकें। आज की इस कार्यक्रम में डॉक्टर रिम्पी अग्रवाल एपीजे कॉलेज जालंधर से हमारे मध्य हैं, जो कलर्ड पेंसिल पोर्ट्रेट हमें सिखाएंगी। आप बहुत सी नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में प्रतिभागिता कर चुकी हैं और हम आज इन्हीं से कला की बारीकियों को सीखेंगे। उससे पहले मैं हमारे बीच हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अमिता अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वो कार्यक्रम के शुभारंभ करें। डॉक्टर अमिता मैम। It's a moment of great pride for us, as well as immense pleasure that we are able to organize this workshop. Dr. Chhavi Jain, the head of the Department of Drawing and Painting, have taken a lot of initiatives to organize this workshop. And you will be surprised to know that at present we are running 2 programs simultaneously. One FDP program in the morning from 11 to 1 p.m. and then in the evening we are running this workshop. And in both these programs, Dr. Chhavi Jain is taking a very active participation and role in organizing it. So as she has talked about the purpose and aim of this workshop, it's a 7-day workshop which will open new emerging trends in drawing and painting arena. We are accustomed to the traditional kinds of drawing and painting, but a lot of work is being done using new tools and
new styles. As you will see that all these 7 days will exhibit new kind of tools and performances in art. The art or technique of producing images on a surface, usually paper or wall or cloth, by means of marks, and in which usually we use ink or colors, chalk or charcoal or crayons. They express the design, the idea, which basically is conceived in our minds and which gets expressed in the form of a beautiful painting or a beautiful design. The modes may be different, the tools may be different, but one thing is common, that is the beautiful idea, the expression that is hidden behind this design. So it's a performing art. And in this workshop, we will experience different modes like color pencil portrait, woodcut, digital collage and digital painting, clay modeling, charcoal portraits, pen and ink. Some of them are very known to us, but even then, when we will see them exhibited on our digital screen, so it will give us an opportunity to go into the nuances of this art. I'm extremely happy to have Dr. Rimpi Agrawal as our first artist in this workshop. I extend a warm welcome to Dr. Rimpi, and I have seen her academic profile in such an early age. She has attended a lot of workshops, organized a lot of exhibitions, written so many papers. So this shows her caliber and her thirst for knowing more and more. So it's a time when she will share her experiences, she will share her art and vision with the participants of this workshop. I give all my blessings and good wishes for successful organization of this workshop. Over to Dr. Chhabra. अब मैं रिम्पी मैम से आग्रह करूंगी कि वो कार्यक्रम के लिए अपना डेमो का शुभारंभ करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पेंसिल कलर्स के बारे में बताना चाहूंगी कि पेंसिल कलर्स कौन से लेने चाहिए हमें और कौन सी शीट लेनी चाहिए। शीट हमारे पास कोई भी हो, हम कैंट शीट पे भी कर सकते हैं, कुछ कलर्ड शीट्स मार्केट में आती हैं जिसे हम पेस्टल शीट्स कहते हैं, उस पे भी कर सकते हैं। शीट पेंसिल कलर का ये एक प्लस पॉइंट है कि ये किसी भी सॉफ्ट शीट पे अच्छा इफेक्ट देते हैं, जस्ट थोड़ा वो ग्रेनी ना हो। जैसे कि हमें पेंसिल सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल हम करते हैं ना, या चारकोल के लिए हमें ग्रेनी शीट हमारे लिए बेस्ट रहती है, तो इसके लिए थोड़ी सी स्मूथ चाहिए हमें। सो पेंसिल जो है, पेंसिल कलर मैं यूज करती हूँ ज्यादा स्टेडलर और फेबर कैसल के। उसके अलावा एक और है मैप्ड, MAPED, मैप्ड कलर्स हैं, ये भी थोड़े सॉफ्ट है। उसके कोई भी आप पेंसिल कलर शुरू स्टार्टिंग में आप यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर आप फेबर कैसल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी रिजल्ट अच्छा है। तो मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके अपना फर्स्ट वीडियो साथ में चलाती हूँ और साथ साथ में बात करते हैं। लेट्स सी। होप एवरीबॉडी कैन सी, सब देख सकते हैं स्क्रीन? यस मैम। चलाऊं मैं? यस मैम। चल रहा है? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। सो ये मैंने पहले एक स्केच कर लिया हुआ था, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि स्केच सब करना जानते हैं। तो उसके बाद अब मैंने एक ब्राउन कलर डार्क लिया है, जिसके साथ में अब इसको धीरे धीरे पहले फीचर्स को पेंसिल कलर के साथ निकालूंगी। ये मेरा फेबर कैसल का पेंसिल है, सॉरी स्टेडलर की पेंसिल है, ये थोड़ी ऊपर लाइंस होती हैं। स्टेडलर की ये पेंसिल मेरे पास 20 साल से पड़ी हुई है, ये बड़ी हैरानी की बात मुझे खुद भी लगती है। 20 साल पहले मैंने एक पैक खरीदा था जो आज भी मैं इनको यूज कर रही हूँ कि अगर आप थोड़ी संभाल अच्छी रखे तो बहुत इनकी लॉन्ग टर्म होती है इनकी पेंसिल्स की।
सो हम स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, टीचर्स भी देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, चलो सब किसी ना किसी का स्किल शेयर होता है। मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, मैंने पहले यहाँ पे ड्राइंग की, उसके बाद मैंने ये सामने आपके रब कर रही हूँ। ड्राइंग करने के बाद हमें इसको इसलिए रब करना है कि जो पेंसिल का इफेक्ट है हमारा कम हो जाए। आई होप एवरीबडी कैन लिसन मी, कैन हियर मी। छवि मैम कैन यू? यस मैम, बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम। कोई इंटरप्शन हुई तो मुझे प्लीज इंटीमेट कर दीजिए। जी मैम, जी श्योर। तो इसके साथ अब मैं सिर्फ ब्राउन कलर के साथ ही फीचर्स को निकालूंगी, क्योंकि हमारे फेस पे, इंडियन फेस पे, एक ब्राउन कलर एक मस्ट कलर है, जो कि इंडियन रेड कलर हम कहते हैं। ये एक इंडियन रेड कलर टाइप ब्राउन मैं यूज कर रही हूँ, जिसका हमें एक बेसिक शेड देना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताती हूँ और सबको, कि आप जो अगर बेसिक मैं बता रही हूँ आप इनको फॉलो कर लोगे तो आप कहीं भी बेटा चूक नहीं सकोगे। ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी, चाहे पेंटिंग, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, आप सब की सब चीज बराबर करोगे। जैसे मैंने आईज बनाई है, नोज बनाई है, लिप्स बनाई, उन सबको मैं एक फर्स्ट कोटिंग दूंगी दूंगी। ये नहीं है कि मैं सिर्फ आंखों पे पहले सारा जोर लगा दूं, या मैं पहले बाल बना लूं, या मैं ऐसे कर लूं सारा फेस बना लूं, बाल मैं सबसे बाद में बना लूं। ये तो बहुत लैकिंग पॉइंट हो जाएगा, जिससे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा हमने कहाँ पे कितना जोर लगाना है। कई बार होता है कि बाल हम इतने डार्क कर देंगे अगर सबसे पहले बनाएंगे, फेस हमारा उसके अकॉर्डिंग जा ही नहीं रहा होता। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी है कि हम अगर जब मैंने ड्रॉइंग और पहले कर ली सारी, अब मैंने फर्स्ट कोटिंग करनी शुरू की है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले मैं एक पूरा कोट कर रही हूँ फेस पे, जो बहुत जरूरी है। और एक और बात, जब हम ड्राइंग करते हैं और कलर स्टार्ट करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपकी एग्जैक्ट शक्ल या जिसको आप बना रहे हो एज इट इज बन जाए। अब जो मैं पोर्ट्रेट बना रही हूँ, आप देखोगे कि इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो इससे बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि आप साथ साथ में अपनी गलतियां भी ठीक करते जाते हो, और कलर्स में, फुल कलर्स में और हाफ कलर में, या सिर्फ ड्राइंग में शेड का बहुत फर्क होता है। और आपने साथ साथ में कपड़ों को भी साथ साथ में उतना ही रिजल्ट देना है, साथ साथ में जितना आप बाकी चीजों में दे रहे हो, बालों को, कानों को, सब ड्राइंग। और इसमें मैं जो एक्स्ट्रा पेंसिल नजर आ रही है वो साथ में रब कर रही हूँ, ताकि वो हमें बीच में डिस्टर्ब ना करे। आईज में आई बॉल और आईब्रोज, इनको ब्राउन कलर पहले हमने देना जरूरी है। नोज ट्रिल की डार्कनेस, लिप्स की सेंटर लाइन, नेक की जो, ये थोड़ा एज लेडी है तो इसमें थोड़ा नेक पे हल्का सा एज इफेक्ट भी है, तो उसकी जो डेप्थ है उसकी डार्कनेस। बालों में तो मैं कहती हूँ कि हर जिस तरह का भी बाल आपने बनाने हैं, यंग का, ओल्ड एज का, मिडिल एज का, तो आपने एक बार ब्राउन शेड पहले देना ही देना है। अगर हमने ब्लैक सीधा यूज कर लिया तो उसमें हार्डनेस आ गई और उसमें कोई क्वालिटी पेंटिंग जैसी नहीं रहेगी। और इस पोर्ट्रेट में आप सॉफ्ट अभी देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ एक तरह, मेरा अपना व्यू है कि एक तरह से ये भी कंप्लीट लग रहा है, ये लाइट स्केच बन गया। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आप इसको बहुत इंजॉय करोगे। एक ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं इसका सेकंड स्टार्ट करूंगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया ताकि अगर आपने बाद में भी देखना है तो आप एक एक स्टेप बाय स्टेप सीख सको। सो ये एक पहला स्टेप है, इसकी जो फर्स्ट कोटिंग मैं कर रही हूँ, ये ओवर हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं सेकंड, छवि मैम सेकंड स्टार्ट करूँ? हेलो, यस मैम, बिल्कुल करूँ? जरूर। हाँ ओके जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके। ये मैंने सेकंड स्क्रीन शेयरिंग कर लिया उसका स्केच का। इसमें पहले हल्का सा मैंने लिप्स पे जस्ट जो मैंने पिंक पकड़ा वो लगाया। मेरे मेरे ख्याल में तब मेरा वीडियो ऑन नहीं हुआ था, जिस कारण ये थोड़ी सी गलती रह गई थी। ये जो पिंक मैंने पकड़ा हुआ है ये है फैबर कैसल का। पहले मैं स्टेडलर के पेंसिल पकड़ी हुई थी, मैंने मिक्स यूज की है सारी। तो ये पिंक मैंने एज इट इज लिप्स पे हल्का सा भर दिया था। अब क्या है कि जो बिंदी भी लगानी है वो मैंने पहले लगा लिया, वो मैं सबसे बाद में, ये नहीं कि मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी, वो भी उस कोटिंग में ही का ही हिस्सा है जो भी है। हाँ, जो इसमें नहीं मैंने ऐड किया था वो था थोड़े से ऑर्नामेंट, क्योंकि मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। एक और बात है कि जब हम स्केचिंग या पेंटिंग करते हैं तो उसमें जो फेस का मेकअप है, जो गहने हैं, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। पहले आप देखो कि आप पोर्ट्रेट को उसका उसका सही उसका हक दे रहे हो कि उतना उसके लायक बना रहे हैं हम। बाद में हम देखेंगे कि उसके गहने ऐड करने हैं या मेकअप करना है, ठीक है। तो दिस इज अ विदाउट मेकअप पोर्ट्रेट, क्योंकि एज लेडी का है। सो ये देखो कि अब मैंने जो कलर्स डिफरेंट उठाने शुरू कर दिए। मैंने पिंक भी फेस पे लगाया है। अब आप देखोगे कि डार्क ब्राउन मैंने उठा लिया, जो आंखों पे भी लगाया है, आईब्रोज पे भी गया है। और एक ग्रीन कलर की हल्की सी आपको कहीं कहीं लेयर नजर आएगी। ग्रीन कलर यूज करना फेस पे बहुत जरूरी है। ये ग्रीन या रेड टोन्स, ऑरेंज टोन, ये सारी टोन्स हमारे फेस पे हमें नजर आती हैं। अगर आप किसी मेल का बनाओगे कभी, आई होप मुझे नेक्स्ट कभी फिर चांस मिले तो आपको मैं मेल पोर्ट्रेट दिखाऊंगी। तो मेल पोर्ट्रेट जब बनाओगे तो उसमें तो ग्रीन कलर फेस में बहुत यूज होता है, क्योंकि जहाँ पे उनके दाढ़ी या मूंछों की हार्डनेस है, तो वो एक
ग्रीन कलर पैदा करता है। अब घर में आपके भाई हैं, जब फादर हैं, जब कोई भी है जो यंग है, जिनके दाढ़ी वगैरह है, तो आप उनका फेस देखोगे, कभी उन्होंने शेव किया तो आपको वहां पे शरेआम एक ग्रीन कलर नजर आएगा। सो ये ग्रीन कलर एक एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है, ये नहीं कि उनके फेस पे ग्रीन कलर है, ये बालों और फेस का एक शेड मिक्स होके वो एक ग्रीन इफेक्ट पैदा करता है। सो आप देखोगे कि मैंने अब बालों को डार्क शेड दे दिया है। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है मैंने वीडियो, क्योंकि स्लो में तो बहुत टाइम लगना था। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में आप देख सकते हो कि बालों में फिर मैंने एक डार्क टोन ब्राउन दे दी, अभी कोई कहीं भी काला आसपास नजर नहीं आ रहा है। दिस इज सेकंड कोटिंग गोइंग ऑन इन पोर्ट्रेट। तो ये जहां जहां पे जो जिस कलर की जरूरत है वो एप्लीकेबल हो रहा है। ब्राउन कलर कहाँ लगना है, थोड़ा रेड है, पिंक है, ग्रीन है, ये जस्ट एक फर्स्ट और सेकंड कोटिंग कह सकते हो। नेक में आप देखोगे आपको ग्रीन रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, बालों में ऑलमोस्ट सारा ऑरेंजिश डार्क हो गया। अब ये फेस पे भी आप देख सकते हो कि येलो ऑरेंज टाइप कलर मैं यूज कर रही हूँ, जो एक लाइट का इफेक्ट करेगा। सब जगह पे एक प्रॉपर आप एक फिनिशिंग दोगे तो आप नेक्स्ट कोटिंग करोगे। तब तक आपकी फोटो में ना तो या उसको कहते हैं सिमिलिट्यूड, आपने कैनन ऑफ इंडियन आर्ट में पढ़ा है, सादृश्य, ना तो सादृश्य आएगा ना उसमें भाव आएगा। जितने भी कैनन ऑफ इंडियन आर्ट है, रूप भेद प्रमाणा भाव लवण्य योजनम सादृश्य इति चित्र षडंगम। आई होप ये सारा ये श्लोक आप फाइन आर्ट्स के बच्चों को रट लेना चाहिए। रूप भेद मीन्स की जो हम बना रहे हैं फेस, भाव रूप भेद भाव मीन्स की एक्सप्रेशन, जो आपको एक्सप्रेशन एक हल्का सा एक मदरलीहुड आपको नजर आएगा। एक्चुअली दिस पोर्ट्रेट इज ऑफ माय मदर। सो मैंने एक वो उसी भावना से बनाया है, मुझे लगता है कि वाकई वो माँ का एक जो इफेक्ट है नजर आ रहा है। रूप भेद भाव प्रमाणा। सो नेक्स्ट मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने हल्का सा शेड मैंने विदाउट वीडियो बनाए कहीं कहीं येलो दे दिया था। अभी भी आप देख सकते हो पोर्ट्रेट में काफी इफेक्ट्स आ गए हैं, पर मैंने अभी तक बालों को काला नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी भी उसका उतनी डार्कनेस की जरूरत नहीं है जितनी की जितना फेस में डार्क चलेगा उतना ही बालों में चले। परमान होता है कि मेजरमेंट, आई होप परमाना आप सब लोग जानते हो। परमाना होता है एक तरह का मेजरमेंट, जैसे कि पोर्ट्रेट की बेसिक है वो मैं आपको बताती हूँ। दो आंखें बनाते हो तो बीच में कितना स्पेस छोड़ना है, बीच में आपने उतना स्पेस छोड़ना है जितनी हमारी एक आंख है। लिप्स कहाँ बनने चाहिए, नोज का कितना लेंथ होना चाहिए। सो ये परमाना है। कान कहाँ होने चाहिए, आईब्रोज से शुरू होके नोज तक, हमारे आईब्रोज से नीचे कान एडजस्ट हो जाने चाहिए। भावलावन्य होता है एक लस्टर, एक शाइन मीन्स एक चमक। चमक ये नहीं कि हमने चमक वाले रंग लगाने चमकीले, चमक होता है कि हमने उसमें एक पेंटिंग या भाव, इन सब चीजों को मिला के क्या चमक पैदा की। रूपभेद परमान भाव लवन्य योजनम। सादृश्य सिमिलिट्यूड, किसका बना रहे हो पोर्ट्रेट, उसकी शक्ल मिल रही है। इति चित्र वर्णिका भंग, कलर्स और ब्रशेस शीट की नॉलेज होना। जैसे कि आपने जितने मिनिएचर पेंटिंग पढ़ी होगी उसमें आपने सब देखा होगा कि कौन से वो कहते ब्रशेस यूज करते थे, कौन सा ताड़ पत्र है, या पेपर है, या क्लोथ पे किया है ब्रशेस, स्क्वेयर के, गिलहरी के हैं, ऊंट के हैं, किसके हैं। ये सारा वर्णिका भंग में आता है। इनकी नॉलेज आपको उतनी ही होनी जरूरी है जितनी आपकी एक्सपर्टीज पोर्ट्रेट या पेंटिंग बनाने में है। अगर आपको कलर्स की, शीट की बराबर नॉलेज है बच्चे, तो आप उतना ही अचीव कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल इफेक्ट तो आपका कलर्स और शीट या पेंटिंग कलर्स या कैनवस नहीं देना है। ये उतनी ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं जितनी आपका एक पेंटिंग में स्किल होना जरूरी है। सो इन सब चीजों का साथ में उतना ही इंपॉर्टेंस है। सो देखो अब मैंने पर्पल कलर उठाया हुआ है स्टेडलर का। ये पर्पल कलर हमें नजर नहीं आता वैसे, पर ये होना जरूरी है। अब जितने कलर, अब लास्ट बन जाएगा पोर्ट्रेट, आप देखना कि उसमें आप कौन कौन से कलर्स आप देख सकते हो। ये पर्पल कलर सारा फेस में स्मज हो रहा है और एक रियलिस्टिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। यही कलर सारा आंखों में, फेस में और बालों में भी यूज होगा, नेक में भी यूज होगा। हाँ, यहाँ पे मैंने कपड़ों को साथ में नहीं बनाया, वो मेरा एक हल्का सा इस पोर्ट्रेट में माइनस पॉइंट रह गया, क्योंकि मुझे साथ में ही बनाने चाहिए थे, बट वो मैंने बना दिए। कपड़ों को भी साथ में ही बनाना है आपने, जो मैंने यहाँ नहीं बनाया तो आपने ऐसा नहीं सेम फॉलो करना। तो अब लिप्स की आउटलाइनिंग हो रही है, डार्कनेस हो रही है लिप्स में। बहुत जरूरी है कि आपको लिप्स को कैसे सॉफ्ट रखना है। आउटलाइन कभी आपने इतनी डार्क नहीं देनी, अगर मैंने दी है तो मेरा एक यहाँ पे पर्पज है, मैं उसको जाके आगे सॉफ्ट कर लूंगी। अब ये काफी निकल आया यहाँ पे पोर्ट्रेट, आप देख सकते हो। फेस में जितनी फाइन लाइंस हैं, या ये कह सकते हैं हम रिंकल्स हैं, अब ऊपर में डार्कनेस शुरू कर दिया मैंने बालों पे। आप देख सकते हो कहाँ कहाँ लाइट छोड़नी है, वो भी देख सकते हो आप कैसे चलनी है। सो ये डार्कनेस और लाइट का ध्यान रखना
साथ साथ में ही जरूरी है। बाद में अगर हम सोचे कि नहीं, हम यहाँ पे बाद में डार्क कर देंगे, हम यहाँ पे हम इसको लाइट छोड़ देंगे, जहाँ हम लाइट कलर की पेंसिल उठा लेंगे, ये कभी नहीं होगा। आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे लाइट छोड़नी है, कहाँ पे डार्क करना है आपको, ये सब आपका साथ साथ में ही चलेगा। और साथ साथ में आप नोटिस करना कि मैंने बिंदी को भी उतना उतना डार्क करना शुरू कर दिया, कान डार्क हो गए हैं, लिप्स में लिपस्टिक या जो भी डार्क इफेक्ट है वो आ गया, आई बॉल डार्क होना शुरू हो गया है। एक बात हमेशा बच्चों याद करना, जो पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट रखते हैं जैसे भी है, सबसे डार्केस्ट पोर्शन हमारे फेस पे होता है हमारे आई बॉल, और उसके ही बराबर जो उससे कम होते हैं वो होते हैं सिर के बाल, जो हमारे शेड दे रहे हैं। और उसमें हमने शेड भी क्रिएट करना है। ये बैक साइड के बाल हैं जो पहले रह गए थे, अब मैं बना रही हूँ, दोनों साइड में नहीं बनाए थे। और आंखों का एक डार्क इफेक्ट और बीच में जो लाइट डली हुई है वो पहले ही छोड़नी पड़ेगी। कई बार पेंसिल कलर में आप नहीं दे सकते लाइट, पेस्टल कलर में जरूर होता है। हाँ, मेरी एक एक्सपर्टीज पेस्टल कलर में भी बहुत है, जिसमें पेस्टल कलर में आप पेस्टल कलर के ऊपर पेस्टल चला सकते हो, बट पेंसिल में ऐसा मौका नहीं मिलेगा बच्चे। आपको जैसे वाटर कलर की टेक्निक है, लाइट टू डार्क जाना है, तो आपको इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा, लाइट टू डार्क जाना है, और लाइट पोर्शन सारे के सारे आपको छोड़ने पड़ेंगे, पूरे के पूरे। ये नहीं कि आप सोचो कि आप बाद में लाइट क्रिएट कर लोगे या रब कर लोगे। हाँ, रब करने का थोड़ा चांस होता है, बट ये नहीं कि पूरा आप उसमें रबिंग इफेक्ट दे दो। उसके साथ क्या होगा कि आपका रियल कलर मिट जाएगा। तो मैंने इसमें कहीं भी रब नहीं किया, मैंने सारे का सारा एक इफेक्ट छोड़ा हुआ है लाइट का। ये देखो, पहले का नजर आ रहा है और लास्ट में कितनी डार्कनेस आ गई थी। अब मैं लास्ट आपको स्लाइड दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बात कर ली थी आंखों की। आंखों में मैंने साथ में उतनी ही कोटिंग की है जितनी और जब बालों में, और आंखों को डार्क डार्क करते जाना है। ये नहीं कि आप सबसे पहले ब्लैक कलर की पेंसिल उठाओ और उसमें सबसे पहले हमने डार्क लाइन लगा दी आंख की, तो वहीं पर उसका हार्डनेस आ जानी है। आपने सबसे पहले ब्राउन कलर ही उठाना है, जो हमारा इंडियन स्किन टोन है, उस कलर से पूरी ड्राइंग करोगे। जब हम पढ़ते थे एमए में, मुझे याद है हम कैनवस पे लाइव ड्राइंग या पोर्ट्रेट बनाते थे, हमें पेंसिल अलाउड नहीं थी एमए में। आजकल बच्चे ये नहीं सोचते हैं। हम येलो ओकर्ड के में बीच में थोड़ा बर्nt सिना मिक्स करते थे, उसी के साथ ड्राइंग करते थे, उसी के साथ हल्की शेडिंग देके उसके बाद उसके ऊपर रंग कलर अप्लाई होते थे। हमें पेंसिल तो कभी दूर दूर तक अलाउड नहीं होती थी, कि हम एमए के स्टूडेंट हैं और हम कैनवस पे पेंसिल यूज कर रहे हैं और फिर बाद में रबड़ के साथ उसको रेस कर रहे हैं। दैट वाज इम्पॉसिबल फॉर इन आवर टाइम। सो आप भी मैच्योर बच्चे, बेटा आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आपको रिस्क लोगे तभी आप कुछ करना सीखोगे। मेरे एक टीचर कहते थे कि क्रिएटिविटी है जंप इनटू द ब्लाइंड वेल। एक अंधेरे कुएं में आपका एक जंप है जब आप एक क्रिएटिविटी के लिए जाते हो, ठीक है। तो आपको उस कुएं में छलांग तो बच्चे लगानी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपको कोई रिजल्ट अच्छा मिले। अगर आप डरते रहोगे कि नहीं मैं कलर से सीधा स्टार्ट करूंगी तो कैनवस खराब हो जाएगा, तो होने दो, कोई बात नहीं। कैनवस में तो बहुत चांसेस है, आप उसमें व्हाइट वॉश करके दोबारा कर लो। हमारे पास इतना टाइम है और इतना यंग एज में इतना कुछ हमारे पास वो होता है, जोश होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं बच्चे। एक डिटर्मिनेशन है ना, जो डिटर्मिनेशन, अगर आप अपने पास डिटर्मिनेशन रख लोगे तो दुनिया की कोई चीज आपको कोई किसी भी तरह की पेंटिंग बनाने से नहीं रोक पाएगा। मैं बहुत अर्ली एज में पोर्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरा डिटर्मिनेशन था। नेक्स्ट आई होप कि मुझे चांस मिले, मैं आपको पेस्टल का डेमो दूंगी डेफिनेटली, और वो देखना वो बहुत चैलेंजिंग है और वो बहुत टफ है। आपको एक टाइम में तो रोना आएगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो खराब हो रहा है, क्योंकि मैंने भी बहुत बारी रोई हूँ उसमें बनाते, पर मैंने छोड़ा नहीं। सेम इन द पेंसिल, छोड़ना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप सब बच्चे इस वक्त पता क्या सोच रहे हो, जो भी देख रहे हो, तो बहुत ईजी है, हमने आज ही बना लेना चाहते। जैसे हम सोचते थे, हम टीचर्स की डेमो देखते थे, हम कहते थे तो आज ही बना लेना, इतना आसान, जब पेंसिल पकड़नी है मजाल है एक स्ट्रोक भी लग जाए ऐसा। क्योंकि उस टीचर की कितने साल की जर्नी है, उसने कितने स्केचेस किए हैं अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज में, देन टीचर टाइम में, तो वो उस लेवल पे पहुंचा है टीचर की, वो आपको सिखाने के लायक हुआ है। अभी आप बहुत लर्निंग स्टेज पे हो तो आपको लगेगा हाँ ये तो बड़ा आसान है, बन जाएगा, बट जब आपने उठाई पेंसिल या कलर, मजाल है आपका रोना ना निकल जाए। सो उस रोने को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। नाउ द फाइनल टच आई एम गोइंग टू शो यू। ये ऑलमोस्ट डन है पोर्ट्रेट, बट इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मुझे लगता है कि एक फाइनल जो एक स्ट्रोक है वो अभी इसमें आना बाकी है। जब मैं पोर्ट्रेट बना रही थी तो मेरे हस्बैंड कहते थे इसको तू खराब कर लेगी, छोड़ दे, ये डन है। मैं कहा नहीं डन है। कहते मैं बैट लगा रहा हूँ, तू खराब कर रही है। मैं कहा कैसे खराब कर रही हूँ?
ये तो अभी बन रहा है, आपको क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या फीलिंग्स ले रही हूँ। कहते ये तो खराब हो जाएगा, देखना तुम, मैं शर्त लगाता हूँ, तुमने इतना अच्छा पोर्ट्रेट बनाया, अब इसको खराब कर रही है। अब इसको मैंने क्या किया मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, तब तक आप ये स्लाइड देखिए और एंजॉय करिए। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड भी करेंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं स्लाइड एक आधी बार दोबारा जरूर चलाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा, आप देखोगे और सीखोगे। क्योंकि जब सब कई कई अच्छे कई स्टूडेंट्स अच्छे इसको फॉलो करते हैं, बाद में इसको छोड़ देते हैं, करते नहीं। हमारे साथ कई टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो भी देख रहे हैं और उनको भी पता है, वंदना मैम ने मुझे चूज किया, उनको ध्यान इसीलिए मेरी तरफ गया, उनको पता है कि ये पेंसिल और पेस्टल बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इसको करने की हिम्मत चाहिए। बेटा देखो मैंने नीचे ग्रीन और ब्लू कलर भी लगा दिया। ब्लू कलर मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि कपड़ों में ब्लू कलर था, जो मैंने इसमें नहीं शो किया है। ठीक है, मुझे फोटोग्राफ से देख के बनाया था, मैंने ब्लू कलर चूज किया, उसमें कलर ब्लू नहीं पहना था, बट मैंने ब्लू कलर इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे फेस पे ब्लू शेड डालना था। जब ऐसे आप शेड डालते हो ना, चैलेंजिंग ब्लू, पिंक या और कोई शेड, तो ये बहुत ऑड शेड है, फेस पे डालते वक्त ये बहुत एक चैलेंजिंग हो जाता था कि ये खराब हो जाएगा। हाँ जी डॉक्टर शबी, यू वांट टू से एनीथिंग? नो मैम, नो मैम, ओके ओके ओके, कंटिन्यू। ठीक है। ओके, सो पेस्टल और पेंसिल कलर्स बहुत कम लोग करते हैं। मेरे बड़े अच्छे टीचर्स हमें मिले जिन्होंने हमें एनकरेज किया और हमें कहा कि आप जरूर करो। सो सो इसलिए आप बच्चे जरूर करना, ये काम ट्राई करना, क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा, बट इतना ज्यादा टफ नहीं है। बस आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, यू कैन अचीव योर डेस्टिनेशन डेफिनेटली। हाँ, एक जहाँ पे मैं पेंसिल चला रही हूँ उस साइड पे देखो एक लाइट पड़ रही है फेस पे, आपको लगेगा शायद बाद में एडेड है या कोई और बात है, यू कैन सी देयर, बट ये मैंने छोड़ दिया था वहां पे स्पेस खाली। उसके बाद मुझे रिक्वायर्ड लगा कि मैंने वो लाइट क्रिएट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने हल्का सा पिंक शेड दे दिया। ठीक है, यू कैन सी। सो ये डार्कनेस चल रही है, मैंने दूसरी साइड में नहीं किया था, मुझे लगा था एक में ही दिखा दूंगी, दूसरी साइड ऐसे इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एक ही साइड में मैंने काफी इफेक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं, अभी दूसरी साइड करने वाली है। अब डार्केस्ट टोन आप बालों में देख सकते हो, मैंने ब्राउन कलर सारा ऑलमोस्ट कवर कर दिया। अब कई बच्चों के मन में अगर ब्राउन कवर ही करना था तो ब्लैक ही लगाना था, तो ब्राउन क्यों लगाया पहले? बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, आप जरूर ये करके देखना, एक साइड में आप ब्राउन से धीरे धीरे डार्क करना ब्लैक, एक आप कर लेना सीधा ब्लैक लगा लेना, आप खुद इफेक्ट देखोगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सॉफ्टनेस है, क्या हार्डनेस है, और क्या ओरिजिनल लग रहा है, और क्या आपको एक आर्टिफिशियलिटी नजर लग रही आ रही है। सो ये चीजें अगर आपने बनानी है, इनको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी बिंदी लाइट है, अभी बिंदी भी डार्क हो जाएगी। ये पिंक शेड आप देख सकते हो, मैंने स्टडर का पकड़ा हुआ है, जो मैं फाइनल टच में ओवरऑल में कर रही हूँ। नेक पे ब्राउन आ रहा है, फेस पे भी आ रहा है, पीछे डार्कनेस है। तो यहाँ पे जहां तक काफी आप सीख सकते हो, ये जो डेमो चल रही है। इसके बाद आपको मैं बस फाइनल फोटोग्राफ दिखाऊंगी, तो उसको बस हल्का हल्का ऐसे करके मैंने डार्क कर दिया। अभी थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग रहती है, जो मैंने फिनिशिंग कैमरा हटा के की थी, क्योंकि मुझे हाथ से पकड़ के बनाना पड़ रहा था, तो मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। अब मैंने स्टैंड ले लिया है, कैमरा स्टैंड, तो उसके साथ इजीली डेमोज रिकॉर्ड हो सकती हैं, स्पेशली डेमोज रिकॉर्ड करने के लिए। और इसलिए अपनी रिकॉर्डिंग्स दिखा रही हूँ बेटा, क्यों ये एक दिन का या एक घंटे का काम नहीं है, ये मैं भी बनाती हूँ तो इसको 3-4 दिन में कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि एक तो मूड चाहिए, हर हर नए क्या कहते हैं कोटिंग के लिए आपको हर नए दिन करना चाहिए। एक कोटिंग आपने एक दिन कर ली, छोड़ दो, या फिर कुछ घंटे छोड़ दो, उसके बाद शाम को स्टार्ट करो, सुबह किया है तो। हर कोटिंग आप अगर नए दिन में करोगे, आप देखोगे आप में एक नया जोश और नई एक फ्रेशनेस आएगी, तो आप कर सकते हो। ये मैंने 4 डेज में पोर्ट्रेट किया था, कुछ एक दो घंटे लगा के। आई थिंक 5 या 6 घंटे में ये पोर्ट्रेट मैंने किया है, क्योंकि आई हैव अ पेशेंस, इसलिए बहुत पेशेंस मांगता है ये पोर्ट्रेट पेंसिल और पेस्टल तो इससे भी ज्यादा मांगता है। तो इसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत स्लो वर्क है ये। स्लो करोगे तो ये फास्ट फॉरवर्ड किया है मैंने वीडियो, ये 15-15 मिनट की वीडियो है, जो जो मैंने कोटिंग्स की हुई है। स्लो करोगे तो आपको इफेक्ट्स भी अच्छे आएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शो द फाइनल पोर्ट्रेट, जो बिल्कुल कंप्लीटेड है, वो इस तरह का नजर आता है। ये मैंने बाद में नीचे किया था सूट या दुपट्टे का शेड, और हल्के से मैंने वो थोड़े से गहने वगैरह या ऑर्नामेंट्स दिखाए हैं। अब ऊपर माथे वगैरह पे आप देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट डन है। दिस इज माय मॉम्स पोर्ट्रेट,
शी इज सो लविंग लाइक दिस। उनका जो एक भाव है ममता का, वो इसमें मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये मेरी माँ है, तो मैंने इसमें वो पूरा जोर लगाया कि वो मेरी माँ है, तो मुझे उसी तरह लगे। जिसने भी देखा उसने कहा वाकई एक जो तूने, हाँ आपने पोर्ट्रेट तो बना लिया बेटा, पर जो एक मैं भाव की बात कर रही हूँ, अगर वो भाव ना आया तो फिर वो पोर्ट्रेट का कोई फायदा नहीं है। सो आपको एक भाव लेकर आना बहुत जरूरी है। वो भाव कैसे लाओगे बेटा? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वो भाव आपको अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा जब आपको डेली आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। सो अब बालों को देख सकते हो, हल्के हल्के उड़े उड़े दिखाए हैं मैंने, वो दिखाने जरूरी है। और जो माथे की लाइन है ऊपर, उस लाइन पे आपने कभी भी एक शार्प लाइन बालों की नहीं देनी है। यू कैन सी नाउ, मैंने जूम किया है। तो ये यहाँ पे इस जगह पे आप देखोगे कि मैंने स्मज कर दिया है माथे में और बालों को आपस में। और ये पेंसिल स्ट्रोक्स आप पास से देख सकते हो, दूर से थोड़ा सा मर्जिंग लगता है। और एक और बात, अगर आप पेंसिल स्ट्रोक आपके नजर आते हैं जब मर्जिंग नहीं है, आपके स्ट्रोक्स नजर आने चाहिए, पता लगे वो पेंटिंग है। अगर आपने उसको फोटोग्राफ बना दिया तो फिर कैमरास बहुत हैं, बहुत डिजिटल आर्ट है। आपकी पेंटिंग पेंटिंग लगनी चाहिए बेटा, ओवर रियलिस्टिक आप अपने शौक के लिए करो, बट आप लोगों को दिखाने के लिए एक पेंटिंग बनाओ, आपका लगे कि आपने एक एक स्ट्रोक लगाया। यू कैन सी द ईच एंड एवरी स्ट्रोक इन माय पेंटिंग। सो आप बिंदी भी आप देख लो, अब लिप्स भी देख लो, सब डार्क कर दिया। आईज में जूम कर रही हूँ, और आईब्रोज में जो बाल हल्के हैं, अब आईब्रोज डार्क नहीं करने, सारी हार्डनेस ले आओगे आप। आईब्रोज में हल्का ग्रीन ब्राउन और कहीं कहीं पे डार्क हल्का सा टच देना है अपने ब्लैक का, लाइट बस हल्का सा कहीं से उसको डार्कनेस देने के लिए। बालों में ये सब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इधर लाइट कम थी राइट साइड पे, तो मैंने डार्कनेस दे दी है, बाकी सारी लाइट है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप माय शेयरिंग वीडियो। ओवर टू शवी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आनंद आ गया मैम देख के। मोस्ट और वेलकम, थैंक यू मुझे सो मच। मुझे तो मतलब डेमो तो जितना अच्छा लगा ही मैम, आपकी बातें भी बहुत ही इंस्पिरेशनल थी। थैंक यू और मैम, मैं वो चाहती हूँ जरूरी कि है। कोई भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मैं उससे डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। आई वांट दैट बच्चों को पूछना चाहिए कुछ क्वेश्चन, और एनीबॉडी वांट्स आई कैन प्ले द गेम सम उपासना वीडियोस अबाउट। उपासना मैम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो उपासना मैम, if you want to ask something ma'am. No ma'am. I Wait. think all are satisfied, I think. Yes ma'am, yes ma'am. Okay, no problem then. बहुत अच्छी बात है कि लेकिन चलो मैम आपने एक्सप्लेन। जो कहा कि अगर अगर हम वो डेमो देख पाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मुझे लगता है मेरे लिए, हम सबके लिए मैम बहुत अच्छा होगा। पेस्टल का मैम, पेस्टल कलर का यस मैम, यस मैम। मैं ना अभी मुझे बनाना है वो डेमो, जैसे जी बन मैम, जाएगा आई विल डेफिनेटली शेयर। आई वुड लव टू शेयर मैम। मुझे थैंक अच्छा यू मैम, लगता थैंक यू। है क्योंकि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ बेटा मैं आपके सामने करती हूँ, आप कोई आके देखता ही नहीं है, क्योंकि पेस्टल और पेंसिल बहुत कम लोग करते हैं। यस मैम, तो मुझे बिल्कुल। खुशी होगी कि कोई भी आके सीखे या कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे। मैम एनी एक क्वेश्चन आया है, डेफिनेटली। पोर्ट्रेट में स्केच कहाँ से शुरू करें? ओके ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा है कि ये सबकी अपनी चॉइस होती है। मैं कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ। मैं सबसे पहले आईज की एक लाइन लगा के फिर पोर्ट्रेट स्टार्ट करती हूँ। हाँ, एक और बात मैंने शेयर करनी थी बच्चों से जो पोर्ट्रेट के बारे में जरूरी, मैं इसके लिए ना मैम स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा से, जी मैम, जी। मैम साथ में मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मैम। डेफिनेटली मैं अभी फिर आपसे बात करती हूँ जी सबसे। मैम। हाँ, ये जो पोर्ट्रेट है, मैं पहले इसका आंसर दे दूं। ये देखिए यहाँ पे जो आईज नोज एंड लिप्स, इनकी एक अभी मैं हम डेमो नहीं ना मैं दे पा रही इन चीज की, इसकी भी अगली बार दूंगी। मेरे पास थी इसकी डेमो पर मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं अगर ऐड कर लेती तो। चलो, हमने पेंसिल कलर सिखाने थे, सारे के सारे एक ही एंगल पे होने चाहिए। आपको एक लाइन टेढ़ी, अगर आंखें टेढ़ी हैं तो नोज भी उस लाइन पे टेढ़ा होना चाहिए, लिप्स भी उसमें उतनी टेढ़ा होना चाहिए। अगर आपने एंगल सेट कर लिया तो आपका पोर्ट्रेट कहीं नहीं जा सकता। शक्ल मिलनी बाद की बात है, पहले आपका एंगल और फीचर्स सेट होने चाहिए, उनका प्रोपोर्शन। अगली बात, हम कहाँ से स्टार्ट करें? मैं करती हूँ आंखों के नीचे एक लाइन लगा के, आंखों की ड्राइंग करके, देन नोज, देन लिप्स।
आईब्रोज बना लो, उसके बाद फेस की पूरी आउटलाइन दे देती हूँ हल्का सा। ये एक क्विक स्केच होता है जो सब बच्चों को करना आना चाहिए। ये क्विक स्केच अब आपने कर लिया, उसके बाद आप देखोगे फिर आप उसको धीरे धीरे करोगे कि इसको अब मिटा के अगेन ठीक कर ले, कहाँ से गलती है कहाँ से नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। Yes, ma'am. Ma'am, next question is how to blend pencil colors. हाउ टू ब्लेंड। Blend pencil colors. हाँ देखिए, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको आपके सामने, इसको ब्लेंड करने की तो जरूरत ही नहीं होती बेटा। पेंसिल कलर एक ऐसी कमाल की चीज है ना। हाँ, इसको आपने बहुत जोर से नहीं चलाना है, आपको इसको धीरे धीरे चलाना है। अगर आप जोर से चलाओगे जैसे मैंने कहा है, वो तो वैसे ही एक हार्डनेस क्रिएट कर देगा। सो आपको एक पेंसिल को लाइट 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 चलाते जाओगे। पहली कोटिंग की, उसमें कोई भी कलर मिक्स करो, वो पेंसिल आपको अपने ब्लेंडिंग देगी। अगर आप उसको प्यार से चला रहे हो तो वो आपको ब्लेंड खुद ही करने देगी। अगर आपने उसको डार्क चलाया तो फिर नहीं वो ब्लेंड होएगी। सो ट्राई टू डू वेरी सॉफ्टली पेंसिल शेड्स मिक्सिंग। अगर आप मिक्स आप लाइट लाइट करोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी, ब्लेंड अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम पूछा है, मैम पोर्ट्रेट में पोर्ट्रेचर लेने के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सॉरी मैं पोर्ट्रेचर पढ़ती हूँ। पोर्ट्रेट में पोर्ट्रेचर लेने के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। पोर्ट्रेचर या पोस्चर? पोस्चर होगा आई थिंक। पोस्चर होगा। रश्मि जी, जी मैम। इनका क्वेश्चन है, इनसे अगर ये बोल सकते हैं इनका मैं करती दोबारा हूँ। क्वेश्चन ऐड कर। हाँ, कि पोस्चर लिखा है ना क्या? अच्छा, एक रश्मि किसी मैम, ने पूछा है। रश्मि मैम आप बात कर सकते हैं, हमने आपको अलाउ किया मैम, आप बात कर यस सकते हैं। यस मैम, मैंने पूछा है पोर्ट्रेचर लाने यानी कि भाव लाने के लिए कौन सी बात का ध्यान देना चाहिए? भाव के लिए मैम ये देखो, Yes. अभी मैंने एक श्लोक भी बोला था, रूपभेद प्रमाण भाव लवण्य योजनम इति चित्र षडंगम अच्छा। योजनम सदृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम। ये 6 के 6 आपके जरूरी है। भाव के लिए ये है कि मैम बस सॉफ्टनेस हमें रखनी है, कि हमें किसी भी जगह पे पेंसिल को बहुत डार्क पहले नहीं चलाना है, स्लो 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 करना है। मैं तो जब स्केचिंग करती हूँ ना शुरू में, अब मैं मिस कर रही हूँ, एक दो मैं रेमोस मेरे पास बनी थी वो दिखाना था, कि अब मैं वैसे ही बता दी हूँ बोल के। एक पेंसिल हम चलाते हैं जोर से घिस के डार्क, और दूसरी मैम उतनी डार्क हम एक ही लाइन से हम डार्क कर देते हैं। हम सबको बोलती हूँ ऐसे करके देखना। और एक उसी पेंसिल को हम धीरे धीरे लाइट टू थोड़ा टाइम लगा के डार्क करते हैं। दोनों Yes, को sir. मिटाइए मैम, दोनों पेंसिल को बाद में मिटाइए। जिसको तो हमने बहुत डार्क लगाया तो वो पीछे अपना निशान छोड़ जाएगा, जिसको हमने स्लोली डार्क किया तो वो कोई निशान नहीं छोड़ेगा। निशान नहीं छोड़ेगा इट मीन्स कि वो भाव दे गया अपना, वो अपनी सॉफ्टनेस दे गया। सो दिस इज द मेन रीजन टू क्रिएट द भाव विद सॉफ्टनेस। भाव मैम आएंगे, आप देखो कि आंखों में कैसा इफेक्ट है। बच्चों के लिए ये कि बेटे पहले मैम बहुत प्रैक्टिस कर लें, भाव वो अपने आप डालना शुरू हो जाएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, मैं आगे पूछा, पेंसिल पूरा शार्प एज होना चाहिए ब्लंट। देखिए, पहले तो मेरा एक रूल है कि मैं पेंसिल कभी शार्पनर से नहीं करती शार्प। आपको कटर के साथ शार्प करना आना जरूरी है। अगर आपको कटर यूज करना आ गया दैट्स वेरी वंडरफुल। हाँ, बहुत अगर ज्यादा आपको लगता है कि कुछ तीखेपन की जो जैसे आईज में, तो थोड़ा सा शार्प कर लीजिए, बहुत ब्लंट भी नहीं रखना। ये रिक्वायरमेंट है आपके अकॉर्डिंग टू। बालों में हमें तीखे की जरूरत नहीं, हमें वहां पे मोटा बनाना है, बालों को हमने कवर करना है, तो आप थोड़ा सा उसको शार्प जरूर रखिए, पर वो सरफेस के अकॉर्डिंग ब्लंट होता जाता है। और उसको फिर दोबारा शार्प मत करिए, आप उसको देखिए कि ये इस कलर को हमें ब्लंट कहीं यूज हो सकता है तो वो ब्लंट भी यूज होगा। फेस में कोई इतना तीखापन नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ शेडिंग देनी है, तो उसको ना ज्यादा ब्लंट रखिए ना ज्यादा तीखा। मीडियोकर में आप कर सकते हैं। कौन सा पेपर पर ज्यादा अच्छा पोर्ट्रेट का इफेक्ट आता है, ये है पारुल रानी। हाँ जी, पेपर कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने शुरू में बोला था। एक तो आप कैंट शीट जो ऑर्डिनरी ड्राइंग शीट होती है, एक मार्केट में कलर्ड पेस्टल शीट्स मिल जाती हैं, बड़ी सॉफ्ट होती हैं, आप उस पे कर सकते हो। ये जो मैंने पोर्ट्रेट किया था, ये मैंने किया है सिंपल कैंट शीट पे, जो ड्राइंग स्केचबुक होती है ना उस पे किया है। एक और मैं पोर्ट्रेट पेंसिल का करने जा रही हूँ, वो कलर्ड शीट है। मेरे मैक्सिमम जो पोर्ट्रेट हैं इसके पेस्टल के, वो मैंने कलर्ड शीट पे किए हैं। उसकी मेरे पास पूरी स्लाइड्स हैं। छवि जी, अगर डेमो का नहीं भी मौका मिला तो मैं कभी आपको वो स्लाइड्स पोर्ट्रेट्स की दिखा दूंगी। जी मैम, उसमें जी श्योर। हाँ, उसमें कलर्ड पेपर मैंने यूज किए हैं, उसी से बच्चे बहुत सीख जाएंगे। एक तो वैसे मैंने जो मेरा अपने ब्रोशर पे लगाया है वो पोर्ट्रेट भी कलर्ड शीट के ऊपर है, वो मेरे बेटे का पोर्ट्रेट है। वो ऐसे ही मैंने उसको क्रिएटिव सा बना के
कलर, अपने सारे कलर्स मैंने अपने पास से दिए, उसका बस एक फेस इमेज ले लिया था। हम बहुत कुछ कर सकते हैं कलर्स के साथ चेंज, बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें बस एक रिस्क लेना शुरू करना होगा। आईज कहाँ तक रखनी चाहिए, ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, कहाँ तक रखनी चाहिए का क्या मतलब है, ये द्वारा लिखिए क्वेश्चन जिसका है। आगे मैं चलती हूँ, पोर्ट्रेट में मुख्य रूप से किस नंबर के पेंसिल प्रयोग करनी चाहिए जिससे फिगर निकल कर आ जाए। ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं समझ आया जितेंद्र जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप पहले फिगर की बात कर रहे हैं या पोर्ट्रेट की, या आप पेंसिल पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं या कलर्ड पेंसिल की? जितेंद्र जी प्लीज अपना क्वेश्चन दोबारा बताइए। और एक आकांक्षा ने पूछा है कि आईज कहाँ तक होनी चाहिए। ये देखो आईज क्या है, आईज का थोड़ा सा मैं फिर भी बता देती हूँ। आईज का ऐसे है कि आप जब आईज बनाते हो आपको देखना पड़ेगा कि आंखें बड़ी हैं या छोटी हैं। ये तो अगर आप फोटोग्राफ से बना रहे हो तो बहुत इजी है, आप देखिए कि उसके साइड पे कितनी जगह बची हुई है आंखों में। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको लग रहा है कि आंखों के बीच में कितना फर्क छोड़ना है, तो आपको हमारी आंखों का जितना साइज है, एक आंख, हमें 3 आंखें बनानी है बिल्कुल एक लाइन में सेम साइज की, और बीच वाली आंख हमें रब कर देनी है। अगर आप ऐसे करोगे सेम तीनों आंखें, अगर फ्रंट पोज है, तो आपकी आंखों का कभी भी वो क्या कहते हैं, प्रमाण खराब नहीं होएगा, मेजरमेंट। साइड पोज में क्या होता है कि जो दूसरा साइड पोज है, उसमें एक आंख उधर जो नजर आ रही है वो छोटी होएगी, जैसे कि एक चश्म, 1.5 चश्म, 2 चश्म सामने वाला हो जाता है, 1.5 चश्म होता है कि दूसरी आंख आधी नजर आती है। एक सवा चश्म होता है, हमने सबने मिनिएचर पेंटिंग में पढ़ा हुआ है ज्यादातर, पाला एंड जैना पेंटिंग में, कि उन्होंने सवा चश्म बहुत यूज किया है। सवा चश्म में दूसरी आंख मतलब कि हल्की सी नजर आती है, वो हो जाता है सवा चश्म, एक पूरी और एक हल्की सी। 1 सेकेंड, हाँ जी। और आईज लाइन, हाँ जी हाँ जी, आई लाइन पूछा है इसने, लाइन। ये तो बेटा आपको, स्टूडेंट है तो आप बेटा आपको खुद देखना पड़ेगा लाइन कहाँ तक जाएगी, मुझे अभी भी क्वेश्चन कुछ खास समझ नहीं आया। एंड पेंसिल पोर्ट्रेट में पूछ रहे हैं जितेंद्र जी, ठीक है, किस नंबर? हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। तो अगर पेंसिल पोर्ट्रेट में आप पूछ रहे हो, बेसिकली पेंसिल शुरू होती है HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B तक जाती हैं। चलो HB तो सबको अवॉइड करनी ही है, HB बहुत हार्ड होती है। अगर स्टूडेंट ने HB यूज की तो उसकी हार्डनेस शीट्स पे रह जाएगी, जैसे मैं कहती हूँ कि वो अपना निशान छोड़ता है। 2B से ड्राइंग शुरू करिए, वो बहुत सॉफ्ट है। 2B एक ऐसी पेंसिल है जो आप लाइट चाहें तो लाइट रख सकते हैं, अगर उसको थोड़ा बहुत उसके साथ शेडिंग देना चाहते हो, कहीं कहीं पे फर्स्ट कोटिंग 2B से करिए। 4B से आपकी सेकंड कोटिंग जाएगी, और 6B इज इनफ फॉर द लास्ट एंड द फाइनल कोटिंग। 6B आपकी कोटिंग बहुत मतलब फाइनल शेडिंग देगी, जिसमें बाल भी डार्केस्ट पोर्शन में आ जाएंगे, फेस में शेडिंग है या फिर आई बॉल डार्क करने हैं तो। और जो नंबर वाली पेंसिल होती हैं बहुत अलग अलग कंपनी की आती हैं, हमेशा नंबर पेंसिल से ही करिए, जैसे 2B, 4B, 6B, 8B। कोई ऑर्डिनरी पेंसिल जो बच्चे करते हैं स्कूल के बच्चे, वो पेंसिल्स मत यूज करिए, उनमें एक तो हार्डनेस होती है और वो लाइट होती है, डार्क भी नहीं होती। हमेशा नंबर पेंसिल यूज करिए अगर आपने आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना है। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट में ज्वेलरी को रियलिस्टिक दिखाने के लिए कौन कौन से कलर अच्छे रहेंगे और विच पेंसिल इज परफेक्ट? ये है मनु शर्मा, हाँ जी। ऐसे मैडम है, ठीक है मैडम, ये ऐसे है कि मैंने भी बहुत लाइट दिखाए हैं इसमें पेंसिल कलर में। ये जो आपको पहले ही इसको थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए थी, मेरा पहले कोई आइडिया नहीं था कि मैं इसमें कोई गहने दिखाऊं। एक्चुअली फैक्ट ये है कि मैंने अपने मदर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये बहुत सूना लग रहा है, इसमें थोड़े से गहने ऐड करो, तो मैंने फिर बाद में डाला, तो वो मेरा बड़ा नेगेटिव पॉइंट था जिसमें कि गहने दिख नहीं रहे, क्योंकि उसको उनको अपनी जगह नहीं मिली, वो येलोनेस नहीं आ पाई। तो इसके लिए आपको साथ साथ में, जैसे व्हाइट शीट है जो कोई भी है, आपको पहले ही साथ में बनाने, मैंने नहीं बनाने थे तो मैंने लास्ट में बनाए, तो वो अपना इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। हाँ चलो, थोड़ा सा एक हल्का सा ऑर्नामेंटेशन उसमें आ गया, तो उसके लिए आपको वो येलोइश वोकर कलर, आप ऑरेंज कलर यूज कर सकते हो उसमें, लाइट डार्क के लिए आप ब्राउन कलर यूज कर सकते हो। ये आप करते रहोगे तो एक प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप जान जाओगे उसके बारे में। एनीथिंग एल्स? थैंक यू मिताली जी, थैंक यू। और कुछ पूछना मैम चाहे? एक मेरा ही क्वेश्चन था मैम। डेफिनेटली मैम मैंने ट्राई किया था पेंसिल कलर,
तो जैसे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक कलर जब मैं कर लेती हूँ, चाहे करती लाइट ही हूँ, मान लो येलो कर लिया हमने पहले, Yes. और उसके ऊपर जैसे ब्राउन भी अगर मैं लगाना चाहती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर रंग चढ़ ही नहीं रहा, वो पेंसिल उसके ऊपर नहीं चलती है जैसे। पेंसिल कलर्स कौन से कंपनी के हैं, थोड़ा बता सकते हैं? मैम स्टेडलर। स्टेडलर। अच्छा, अब आप करना, अब आपने जो पहले नीचे किया है ना, आपने उसको डार्क नहीं करना। You have my demos videos, you can see there in detail. छवि जी, ठीक जी है? मैम, जी तो जी। आपने देखना है, पहले करना है आपने बहुत लाइट, डार्क पेंसिल चलाई नहीं कि दूसरी पेंसिल उसने ऐड होने ही नहीं देनी है। मैंने भी स्टेडलर और इसके साथ करती हूँ। ये क्या है कि मैम आपको ना पेंसिल्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपने उनके ऊपर हावी होना, आपने देखना कि आपने कैसे काम लेना है। अगर वो आपके ऊपर हावी हो गए, फिर नहीं उन्होंने आपको काम करने देना, आपने उनको अपने कंट्रोल में रखना है। देखिए कैसे रखना है आपने उसको कंट्रोल में, ये आपका जिम्मा है कि आप उनको कंट्रोल में रखें। सो पहले लाइट चलाएं, उसके बाद डार्क ऊपर पेंसिल चलेगी। सारी स्टेडलर पेंसिल मैक्सिमम मैंने यूज किया पोर्ट्रेट, क्योंकि स्टेडलर मेरा बहुत फेवरेट ब्रांड है। और आप अब ट्राई करना मैम। और मैंने बाद में कहीं कहीं पे मैंने फैब्रिक कैसल हल्का सा यूज किया है, मेरा मैक्सिमम मेरे स्टेडलर ही है, और आपके सामने ही किया है मैंने। पर बस आपने कोटिंग मैम लाइट करनी है, वो जरूर करने देगा। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जो पेस्टल कलर में खास बात है, जो बड़े राज की बात है, मैक्सिमम नहीं लोग जानते, वो इसमें भी एप्लीकेबल होती है पेस्टल कलर में। कि ये है, आप पेस्टल कलर चलाओगे, आप देखोगे कि उसके ऊपर भी कलर नहीं लगता। आप पहली कोटिंग करिए, उसको 2 दिन के लिए छोड़ दो, थर्ड डे करना उस पे। पेस्टल कलर भी सूखते हैं, पेस्टल कलर भी सूखते हैं। अगर आप ये बात याद कर लोगे तो आपको लगेगा कि ये तो कमाल की बात है। तीसरे दिन आप उस पे कलर चलाओगे, वो ले लेगा कलर, क्योंकि उसको भी एक्रेलिक एंड ऑयल कलर के लिए टाइम चाहिए। इसी तरह मैम पेंसिल्स भी हैं, जब हम पेंसिल चलाते हैं ना मैम, एक वार्मथ निकलती है, गर्मी निकलती है अंदर। वो जो गर्मी होती है ना, वो दूसरे कलर को ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने देता, उसको सूखने दीजिए आप। एक और मैं आपको बड़ा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। मैंने जब पीएचडी की तो बीच में थीसिस जब फाइनल प्रिंट हो गए, उसमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ गलतियां रह गई। अब 7-8 कॉपीज थी, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरे साथ हेल्प करवाई उसमें। अब कोई कोई वर्ड मिटाना था, कई जगह पे तो वर्ड्स मिट गए, एक एक कॉपी, 1-2 कॉपीज रह गई। मैंने ना, ये कैसे कमाल हो गया, आधी कॉपीज में मिट गया वो सेम वर्ड दूसरे में कहते, क्योंकि प्रिंटिंग से जो प्रिंटिंग इंक थी वो अभी थोड़ी गीली थी, जबकि वो हाथ लगाने से गीली नहीं लगती। अभी वो पेपर ने अपने अंदर समाया नहीं था उसको, जैसे वो अंदर चलेगी अब वो रब नहीं होगी। इसी तरह मैम ये कलर जब तक शीट अपने अंदर चूस नहीं ना लेता, अपने अंदर इन्वॉल्व या अब्सॉर्ब नहीं कर लेता, तब तक आपको दूसरा कलर ऊपर लगाने नहीं देगी शीट। सो आप इस चीज का भी वेट करिए, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं क्या कह रहे हैं। डार्क शेड देने के लिए 8B और भी बहुत नंबर्स की पेंसिल आती हैं, तो उन्हें किस तरीके से यूज कर सकते हैं और वो सही रहती है या नहीं? पोर्ट्रेट में डार्क शेड पेंसिल, पोर्ट्रेट में 8B और, हाँ जी मैम, हम कोई भी ले सकते हैं पेंसिल्स। 8B बहुत कमाल का इफेक्ट देती है। मैं बस ये कहती कि आप नंबर पेंसिल जरूर देखिए, जैसे 8B है, 10B चली जाती है, अगर 11B भी होती है, बहुत है। मैं इसलिए 4B, 6B और 8B कह रही हूँ, 6B तक इसलिए कह रही हूँ कि इनकी हैंडलिंग इजी है। आप जैसे जैसे डार्क जाते जाओगे, अगर आप इनिशियल स्टेज पे कर रहे हो काम, तो वो आपके हाथ से निकलता जाएगा, वो इतना काला कर देगा कि आपका बना बनाया पोर्ट्रेट खराब हो जाएगा। ये मैं खुद जो मैं बातें बता रही हूँ ना, ये मैम मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने बहुत अच्छा पोर्ट्रेट किया, उसका उसने चारकोल उसका इफेक्ट दे दिया, ऐसे 8B और 10B या 11B में। मैंने कहा ये पहले तरह इतना अच्छा था, अब तूने सारा इसको खराब कर लिया। क्यों किया? क्योंकि तुम्हें चारकोल पेंसिल हैंडल नहीं करनी आई। आप क्या सोचते हो कि डार्क करके और अच्छा हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। कई बार होता है कि आपको जो लाइट इफेक्ट 6B से या डार्क इफेक्ट 6B से मिल रहे हैं, वो 8B खराब कर देता है। 8B या 10B आपको बहुत एक्सट्रीम केसेस में यूज करनी चाहिए कि लगता है कि हाँ इतनी डार्कनेस अब आ ही नहीं रही, पेंसिल बहुत घिस गई है। सो कोई भी ब्रांड का पेंसिल लीजिए और 8B तक आप कर सकते हैं, अगर आप हैंडल कर सकते हैं इजिली। अदरवाइज 4B 6B तक इनफ है डार्कनेस। थैंक यू। any question else? यस मैम। गुड हाँ इवनिंग मैम। जी, एक और है। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। मैम फर्स्ट ये यस, कि जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो आईज ऑयल कलर। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही।
तब तक मैं ये एक क्वेश्चन है मैम, पेंसिल कलर भी थोड़ा टाइम दे के करना चाहिए, एक कोट के बाद दूसरा कोट कुछ टाइम के बाद करना चाहिए? यस यस, मैं कह ही रही हूँ, ये गैलेक्सी है कोई फोन, तो उसने लिखा है क्वेश्चन, मैं तो पहले ही कह रही हूँ। मैंने सबसे पहले यही कहा था कि जब भी आप पोर्ट्रेट की कोटिंग करते हो, अगर आपने अब ड्राइंग कर ली ना, ड्राइंग के बाद आप फर्स्ट कोटिंग कर दोगे, उसको छोड़ दो। अगर चाहे उसमें अभी हो भी सकता है, उसको 2 घंटे 3 घंटे छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर दोबारा से फ्रेश हुए, खाइए पिए सोइए कुछ भी करिए, अगेन देन आप नेक्स्ट कोटिंग करिए, जो फर्स्ट कोटिंग जो मैंने ब्राउन वाली की है, उसके बाद उस दिन सेम दिन आप अगली कोटिंग नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट डे करिए, आप 2 दिन छोड़ के करिए, पेंसिल आपको इजिली अपने ऊपर चलने देगी, तब तक वो सूख भी जाती है और आप फ्रेश भी हो जाते हो। ये मेरा मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है पर्सनल, मुझे नहीं किसी ने सिखाया, ना मैं चाहती हूँ कि आप इसको डेफिनेटली अडॉप्ट करो, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इतने साल इसको एक्सपीरियंस किया है, अगर कोई बहुत सारे टीचर्स या बहुत एक्सपर्टीज मुझे कहते हैं कि आप पोर्ट्रेट में मास्टर हो, तो थैंक्स टू एवरीवन दोज पीपल, क्योंकि इसके पीछे मेरी ये खुद की स्टडी है। जैसे आपको एक बार किसी ने कार चलानी सिखा दी, तो हर जगह तो नहीं वो जाएगा, ना ही वो बताएगा कि आप हाईवे पे कैसे चलाओगे, टाइट गलियों में कैसे चलाओगे, ये आपका एक्सपीरियंस सिखाएगा आपको। और इसी तरह आप एक बार चलाना शुरू करिए, आपका एक्सपीरियंस आपको जरूर साथ देगा। एनीबडी एल्स? अब हाँ, मैम बोल रहे थे कुछ, उनका आवाज बीच में बंद हो गई थी। मैम प्लीज कैरी ऑन। एक मैडम थे अभी। हेलो हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, आ रही है जी। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑयल पेंटिंग में जब हम ऑयल पोर्ट्रेट बनाते हैं तो हम आईज में ब्लैक कलर और हेयर्स में लास्ट टोन में अवॉइड करते हैं, तो जबकि हम पेंसिल कलर में उसको यूज करते हैं। मैंने अभी आपका देखा है, तो आपने यूज किया है, तो उस पे हाँ थोड़ा सा पूछो। हाँ जी, पेंसिल कलर आप कह रहे हो कि ऑयल कलर वगैरह में हम उसको यूज करते हैं? मैम नहीं एक मैम, बात अवॉइड बता, हाँ कलर को आई अच्छा अवॉइड अवॉइड करते करते हैं, ठीक ठीक ठीक। हैं। ऐसा है कि मैम ऑयल कलर में ना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे। ऑयल कलर में ऐसा है कि क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम डार्केस्ट टोन बहुत सारे कलर्स के साथ बना सकते हैं। अब मैं तो, जैसे आपने कहा कि अवॉइड करते हैं, मैंने कभी जिंदगी में ब्लैक कलर यूज नहीं किया, पर मैं जेट ब्लैक इफेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि ऑयल कलर में जैसे हमारे पास वो है, पर्शियन ब्लू है, क्रिम्सन लेक है, और पर्पल वगैरह शेड मिक्स करके तो काले से भी ज्यादा डार्क हो जाता है। अब पेंसिल कलर वो है बेचारे बहुत सॉफ्ट से, उनमें वो डार्कनेस होती ही नहीं है। अब आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने एंड कोटिंग तक मैंने ब्राउन ही करती रही हूँ, कभी पर्पल कर दिया, कभी डार्क ब्राउन कर दिया, बट लास्ट कोटिंग में मैम हमें उसका साथ लेना ही पड़ेगा। ब्लैक कलर तो हमने यूज करना ही करना है पेंसिल में, पर वो उतना ज्यादा नहीं जितना कि हम पहले फर्स्ट कोटिंग में ही कर दें। मैंने यही बताया था कि लास्ट कोटिंग में हमें पेस्टल में भी ब्लैक का साथ चाहिए और पेंसिल में भी चाहिए। हमें एक्रेलिक और ऑयल में हमारे पास बहुत ऑप्शन है, क्योंकि और कलर्स बहुत डार्क दे देते हैं। इसमें भी मैंने बहुत कलर यूज किए, जैसे डार्क पर्पल यूज कर लिया, डार्क ब्राउन मिक्स कर लिया, रेड कर लिया, उसके साथ ब्लैक इफेक्ट दे दिया। बट एक जो डार्केस्ट इफेक्ट देना था वो ब्लैक के साथ लास्ट टच है, उसको बार बार नहीं मैंने किया, बस एक लास्ट टच किया है। ठीक है, थैंक यू। जी मैम, अगर और कोई थैंक यू मैम। क्वेरी है तो आप, हाँ थैंक यू मैम एक और क्वेश्चन है। मैम जी। ये हम पेंसिल कलर में क्योंकि बनाते हुए अभी हम सीख ही रहे हैं, तो कुछ गलतियां हो जाती है, तो कौन सी इरेजर यूज करें उसके साथ? इरेजर तो कोई भी अच्छी हो, डजंट मैटर। मेरे ख्याल में फैबर कैसल की बड़ी अच्छी आती हैं ये इरेजर्स, वो ब्लैक नहीं करती ज्यादा, तो आप यूज करिए। शीट में तो हमें यूज करनी चाहिए इरेजर, आप फैबर कैसल की यूज कीजिए, अच्छी हैं, और भी बहुत अच्छी हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स की भी होती हैं मेरे ख्याल में, वो बच्चे यूज करते हैं ना, मेरा बेटा, तो मैं उससे लेती हूँ, वो यूज कर लेती हूँ। तो इरेजर का कोई इशू नहीं है, बस आपका वो काला ना करे और मिटा दे। एक किसी ने क्वेश्चन किया है, दीपक सहगल ने, पोर्ट्रेट में फेस को मैच करने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे मेहनत करनी चाहिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये तो मैंने अभी बोला कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। शक्ल मिलाने पे अभी इतनी टेंशन मत लेना, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो। पहले आप मेजरमेंट का ध्यान रखना कि आप मेजर कर रहे हो अच्छे से, आपका फेस में आईज ठीक जगह पे लगी हैं, लिप्स ठीक है, नोज बहुत लंबा जा पतला जा मोटा तो नहीं हो रहा है,
कान आपने बुद्धा की तरह बड़े तो नहीं बना दिए, या नीचे तो नहीं बना दिए, या ऊपर। अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लोगे, एंगल सही है, बाल बहुत काले तो नहीं, माथे पे लाइन में जो छोटे छोटे बाल नजर आते हैं वो हमने दिखाए हैं, और नेक लाइन जो है वो अगर, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे क्या करते हैं, मैं देखती हूँ सामने हम बिठाते हैं, लाइव ड्राइंग करवाती हूँ मैं, अगर कोई 40 ईयर की भी लेडी है तो उसमें थोड़ी बहुत लाइनें फेस पे नजर आ जाती हैं, अगर जैसे मेरी भी कुछ लाइन नजर आ रही फेस पे, उसको इतना डार्क कर देते हैं, उसको 65 साल की औरत बना देते हैं। ये क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अगर लाइन जिन्हें हमें अगर नजर आ रही है उसको हम कम कैप्चर करें। हमारी जो जॉ लाइन है उसको जॉ लाइन में हम इतना टेढ़ा टेढ़ा नहीं बनाना है, पेंसिल्स को सीधा चलाइए, जितना सीधा रखोगे बेटा उतना अच्छा कैप्चर कर पाओगे। ये जरूरी नहीं कि आपको जो नजर आ रहा है उतनी टेढ़ा मेढ़ा आप बनाते जाओगे, जितना टेढ़ा मेढ़ा करोगे उतना वो बूढ़ा बन जाएगा, उतना हार्ड बन जाएगा। हाँ बस मैंने ये कहा कि एंगल्स एंड फीचर्स का ध्यान रखिए, सही जगह पे है। एग्जामिनर भी शक्ल पे इतना ध्यान नहीं देता, अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हो, अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हो तो एग्जामिनर भी इतना ध्यान नहीं देता इस पे। सबसे पहले आपका मेजरमेंट होना चाहिए इंपॉर्टेंट, कि आप मेजरमेंट आपने सही किया है, जगह पे आपने वो सारा आपका ठीक लगा है, ये आंखें ठीक है, नाक लिप्स या कान बाल गर्दन मोटी पतली कैसी है, साथ में जो कपड़े बनाए वो छोड़ी तो नहीं दिए, जब बनाए भी हैं या उसमें कैसे हार्ड फोल्ड है, बैकग्राउंड कैसी है, ये सारी चीजें पोर्ट्रेट या लाइव ड्राइंग में बहुत मैटर करती हैं, तभी हम उसमें ड्रेपरीज रखते हैं, ये बात है। और कुछ और क्या, एनीथिंग एल्स? क्वेश्चन लिखा हुआ है वो रुचि के लिए लिख रखा है अपना जितेंद्र कुमार ने। मैं देखती मुझे वाटर कलर में लैंडस्केप में मन करता है, मैं पोर्ट्रेट भी बनाया है परंतु अब पोर्ट्रेट बनाने में मन नहीं करता तो रुचि कैसे लाएं? ये आपने डेमो देखी है, आपको लगता होगा कि अपने पेरेंट्स या अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए एक बहुत अच्छा उनके लिए गिफ्ट है, तो ऐसे रुचि लाइए कि मैं उनको कैसे खुश करूं और अपना पोर्ट्रेट बनाऊं। और एक मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट भी भेजा था, मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट किया, एक मेरा बड़ा देर का तमन्ना था। मैम आपके पास है, स्क्रीन शेयर हो सकती है, दिखा सकते हैं, जब मैं कोई जुगाड़ करूं मैम? हाँ जी मैम, मैं जो आपने पोर्ट्रेट भेजे थे मेरा मैम, जो मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट था वो भेजना जरा। सेल्फ पोर्ट्रेट में करके यस मैम मैं इसे डाउनलोड करती हूँ, आप इसे कंटिन्यू कीजिए। 2 सेकंड मैम। हाँ जी, रुचि की बात हो रही थी, तो इसके लिए बस ये है कि आप एक तो पेंसिल कलर स्टार्ट करिए या फिर पेस्टल स्टार्ट करिए। जब आपको लगेगा कि अच्छा बन रहा है तो आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा कि हाँ पोर्ट्रेट बन रहा है। मैं आपको मैम से इसलिए कह रही हूँ कि सेल्फ पोर्ट्रेट शेयर करने के लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ इस लेवल पे अगर हम काम कर सके तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। वो मेरा पेस्टल का है, वो बाई चांस मैंने भेजा था पहले, मैम अभी आपको दिखाने वाले हैं, प्लीज देखिएगा इसको। एक क्वेश्चन है कि स्टेडल पेंसिल और फेबर कैसल में क्या अंतर होगा? ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से दोनों को, इनमें क्या कि कलर वेरिएशन हमें मिल जाती है, कुछ कलर फेबर कैसल में नहीं होता, कुछ कलर स्टेडलर में नहीं होता, बस हमें कलर वेरिएशन मिल जाती है, कोई डार्क चलता है और कोई लाइट चलता है, ऐसे भी हो जाता है। इसमें बस हमें ये डिफरेंस है। छवि मैम अगर नहीं है तो, हाँ नहीं ये नहीं है मैम, अगला पोर्ट्रेट देखिए, ये तो था ही, ये वाला, इसको थोड़ा जूम कर दीजिए अगर कर सकते हैं। यस इसको कर दीजिए, ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है, ये पेस्टल में किया है मैंने, यू कैन सी एवरीवन, ये पेस्टल शेड्स हैं। आप इस पे क्वेश्चन पूछिए। अब ये सारा देखो, अब बालों को जो मैंने डार्कनेस दिया है, ये पहले इतने डार्क नहीं थे, ये सारे ब्राउन या रेडिश टोन में जाते थे, ये पिंक येलो कलर सारे मैंने, ये पेस्टल में सारी आईज का इफेक्ट जो भी है, ये सारे इफेक्ट्स मैंने पेस्टल में किए। इसमें कोई पेंसिल, हाँ हल्की सी ड्राइंग कर ली थी पहले, बाकी सारा पेस्टल का है। यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग, मैंने शक्ल अपनी ऑलमोस्ट मिला ली है। और दांत बहुत टफ थे बनाने, ये चैलेंजिंग होते हैं बहुत चीज,
और मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अगर आप सोचते हो कि मैंने करना है चैलेंज एक्सेप्ट, तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, आई मस्ट से दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालों को कैसे ब्राइट करना है। बस ब्राइट ऐसे ही करना है जैसे लाइट आपको, हाँ ये पेस्टल कलर है, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताना चाहती हूँ। ये जो बालों की लाइट है या फेस की लाइट है, ये मैंने बाद में ऐड किया। जैसे कि मैंने बोला कि पेस्टल कलर भी सूखते हैं, तो ये जो कलर्स हैं, ये हाईलाइट आप येलो देख सकते हैं, नोज टिप देख सकते हैं बालों में, ये सारी लाइट बाद में ऐड की गई है, पहले नहीं छोड़ी, क्योंकि पेस्टल हमें अलाउ करता है कि हम उसके ऊपर कोटिंग करें। पेंसिल हमें इतना अलाउ नहीं करती है। कुछ पेंसिल वैसे मार्केट में ऐसी आ गई हैं जो पेंसिल के ऊपर पेंसिल चलती है, पर मैंने अभी ली नहीं है। अगर जैसे मैं अगर एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो मैं आपको भी उसको डेफिनेटली बताऊंगी। तो यू कैन सी दिस, चाहे आईब्रोज हैं चाहे कुछ भी है, उसके लिए आपको एक परफेक्शन तो लानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर एप्रिसिएशन। मैम ट्विंकल रावत ने पूछा है, मैम हाइलाइट्स के लिए व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं, ब्लेंड करके व्हाइट लगाइए जहां जरूरत है हमें, हम डेफिनेटली लगा सकते हैं व्हाइट कलर। पर आप उसके लिए रिक्वायरमेंट देखिए कि आपका पीछे सरफेस कितना लाइट या डार्क है। अगर ऐसे है कि बहुत डार्क है, ऊपर आपने व्हाइट लगा दिया, तो वो एक कंट्रास्ट पैदा कर देगा, वो पेंटिंग को हार्ड कर देगा। जैसे अगर आपका येलोइश सरफेस है, जैसे आपने अभी पेंटिंग देखी, येलो सरफेस के ऊपर व्हाइट हाईलाइट ही चलेगी, हम यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम नहीं कर सकते। जो मैंने आपको यूज करने के लिए मना किया कि सबसे पहले हमने ब्लैक नहीं यूज करना, तो वो एक हार्डनेस को रोकने के लिए है। अदरवाइज हम हर कलर यूज कर सकते हैं पेस्टल में और पेंसिल में। हम तो ऑयल में यूज करते थे, हम नहीं करते थे ये ब्लैक वगैरह कलर। बच्चों को भी रोकते हैं, क्यों रोकते हैं? क्योंकि उनको उनका यूज नहीं आता। वो क्या करते हैं, आंख बनाते हैं, पहला कोट ठा से लगाया ब्लैक कलर, तो वो क्या आंखें काली सी इतनी चुभती हैं कि वो फेस पे और कुछ नजर नहीं आता, इसलिए उनको रोका जाता है पहले ब्राउन वगैरह कलर करो फिर कुछ और करो। हाँ वो एक और पेंसिल का नाम है, मैंने रिसेंटली लिए हैं, अभी ज्यादा यूज नहीं किए, वो है मैप्ड। मैप होता है ना, MAPED, मैप्ड, MAPED, मैप्ड नाम के कलर्स हैं। इसमें 36 कलर्स हैं, काफी सॉफ्ट चलते हैं। मैंने अभी पर इसके साथ कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, पर मैं करूंगी और मैम को बता दूंगी, छवि मैम को, कि इसका रिजल्ट कैसा है। नेक्स्ट पोर्ट्रेट मैं बनाने जा रही हूँ, तो उसका फिर मैं आपको रिजल्ट बता दूंगी। जी मैम, हाँ एक जी मैम। स्वयं सिद्ध ने क्वेश्चन पूछा है, मैम एज आई बिगिनर व्हाट पेंसिल शुड आई यूज? व्हाट पेंसिल, पेंसिल कलर्स और दूसरा व्हाट पेंसिल, सिंपल पेंसिल्स, पेंसिल। व्हाट पेंसिल्स, हाँ वो पेंसिल कलर्स में मेरे ख्याल से पूछा होगा उन्होंने। मैंने अभी जैसे डिटेल में बताया था कि अगर पेंसिल्स करनी है तो कोई भी अच्छा ब्रांड ले लीजिए, तो सिंपल उसमें नंबर्स होने चाहिए, 2B 4B 6B 8B। अगर आप पेंसिल कलर्स कर रहे हैं तो आप बेटा फेबर कैसल यूज कीजिए। फेबर कैसल बच्चों को भी स्कूल में करवाते हैं क्योंकि वो इजी एंड कंफर्टेबल है। फेबर कैसल अकेला यूज कर लीजिए और कुछ भी ना यूज कीजिए फॉर द बिगिनर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, छवि जी देखिए जी जरा। मैम, मैम डज ऑयल पेस्टल एक्सपायर्स एज कलर पिगमेंट? नॉट एट ऑल, नेवर, कभी नहीं एक्सपायर होते। हाँ ये देखना है कि आपको आपने रखा कहाँ है। अगर आपने उसको कहीं धूप या गर्मी ज्यादा में रखा हुआ है तो वो थोड़े से मेल्टिंग हो जाते हैं। बस आप नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए। और पेंसिल, मेरे पास जो पेस्टल कलर है वो भी 20-25 साल पुराने पड़े हुए हैं। मैंने कोई, मेरे पास पता नहीं कितने मैंने बॉक्सेस खरीदे, तो वो सारे रख लेती हूँ, कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। मैं आज भी अपना 20 साल पुराना एक कलर शेड यूज करती हूँ जो आज नहीं मिलता। वो डार्केस्ट एक ब्राउन था, वो अब मिलना नए कलर्स में नहीं आता। तो कभी ये कलर्स खराब नहीं होते, कभी भी नहीं, ना पेंसिल तो ना ही पेस्टल। हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन है, शिवानी शर्मा ने पूछा है, कैन यू प्लीज शेयर हाउ यू स्टार्टेड द पोर्ट्रेट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट? हाँ जी, मैंने पहले भी बताया था कि मैं आंखों से स्टार्ट करती हूँ। आंखों के नीचे एक लाइन लगाओ, नोज के नीचे एक लाइन लगाओ, लिप्स के नीचे, मतलब पहले सिर्फ लाइंस लगाती हूँ, एक एंगल लाइंस, उसके ऊपर हल्की सी लाइट ड्राइंग करती हूँ आंखों के, आईब्रोज की, नोज की, लिप्स की, देन फुल आउटलाइन फेस की, ऊपर हल्के से बाल। ये एक क्विक स्केच होता है मेरा, बहुत, मैंने पहले भी बताया, एक क्विक स्केच करना आपको बहुत जरूरी है। तो अगर वो क्विक स्केच आपने कर लिया तो उसके बाद आप उसको धीरे धीरे फाइनल करते जाते हो, फिर आप देख लो कि कहाँ गलत है कहाँ ठीक है। कभी भी आपने एक चीज बना के उसको वहां पे शेडिंग करने नहीं बैठना है। आपको उसको लाइट लाइट स्लो स्लो उसको सारा करना ही करना है, उस पे काम पहले पूरा कंप्लीट कीजिए, देन आप उसको थोड़ा सा फिर उसको डिटेलिंग देनी शुरू कीजिए। हाँ जी नेक्स्ट।
मेरे ख्याल से मैम और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी ओके, जी मैम। बाकी मैम आज का ओवरऑल सेशन बहुत बहुत अच्छा रहा मैम। और Thank जैसा आपने कहा था अपने उसमें कि अभी आप देखेंगे मेरा तो ऐसा लगेगा कितना इजी है। तो मैम वो सेम यस, यस, सिचुएशन यस। है। ये तो हम ऐसा सब लगा भुगत मैम चुके बहुत हैं। इजी है। यस, यस, ये हम भुगत चुके हैं। मुझे जी याद है आज भी प्लस 2 में होती थी तो हमारे एक टीचर आए, उन्होंने ना एक लैंडस्केप, एक ट्री का डेमो दिया, बहुत खूबसूरत। मुझे आज भी याद है मेरे टीचर ने। तो मैंने सोचा इतना आसान, तो घर जाके तो मुझे समझ ना आए वो पेड़ कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। मीन्स ऐसे होता है, अपने एक्सपीरियंस होते हैं, बट घबराना नहीं है, हम उसको अचीव कर सकते हैं इजीली। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हमारी डॉक्टर अमिता अग्रवाल प्रिंसिपल मैम हमारे कुछ कहना चाहती हैं। जी, जी, जी। Thank you, Rimpi. थैंक यू I मैम, enjoyed, मोस्ट वेलकम। I enjoyed your demonstration थैंक्स टू यू मैम। अगर आपने as एंजॉय well किया, as, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। yes, and I also learned a few things. Though I'm not an artist, but I love art, ओके, गुड मैम। and I always enjoy demonstrations. वेरी नाइस मैम, Painting. थैंक यू। So और आप भी ट्राई this कीजिए love, मैम। thank you. ये तो एक मैम कहते हैं ना अपना डिप्रेशन जो होता है, जहाँ हमें स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीवर होता है, ये पेंटिंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीवर है, तो उसके लिए। So it has been a wonderful session, no doubt. The way you have presented the things and you talked about the nuances of sketching is really very helpful for the students, and very patiently you handled all their queries. थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। So आई thank लव you a lot. टू टीच मैम। Yes, yes. We would like to meet you on other platforms also. So sweet, thank you मैम, Thank थैंक you. यू, थैंक यू, थैंक यू छवि जी, थैंक थैंक यू यू मैम मैम, थैंक यू, फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू मैम। मैं वेट ओके, करूंगी कि हम दोबारा मिल पाएं और कुछ डेफिनेटली, नया सीख पाएं मैम। जरूर मैम, आई एम ऑलवेज रेडी टू टीच यू, टीच योर ओके स्टूडेंट्स। ओके मैम, मे आई लीव ओके नाउ? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।